Hello and welcome to this informative video on Section 15 of the Financial Institution Recovery Ordinance 2001 and Amended Act 2016. First of all, I'd like to thank all my subscribers who have subscribed this channel. And while I'm making this video, I'm having 200 plus subscribers. So once again, I thank all my subscribers, and I also request those who have not subscribed this channel, please do subscribe this channel and share these videos with your friends. So moving to our topic, today's topic is Section 15, subsection 8. In the last video, we have completed Section 15, subsection 7. So today we are continuing that video, and if you haven't seen my last video, I have given description, the link in the description, so you can also get from there, and all the previous videos which I have made for you from section 10 to section 15, all the links are given below, so you can watch all these videos. So first of all, we read this section and then we will discuss it. Section 15, subsection 8. For the purpose of execution and registration of sale deed in respect of the mortgage property, the financial institution shall deem to be the duly authorized attorney of the mortgagor, and sale deed executed and presented for the registration by a duly authorized attorney of the financial institution shall be accepted for such purpose by the registrar and sub-registrar under Registration Act. So in the previous video, we just get a information that we have given 3 notices. One notice of 14 days, the other notice of 14 days, thereafter a notice of 1 month, and then if the mortgagor has not deposited the amount, then we give another 1 month notice, and that would be published in the widely circulated newspaper of English and Urdu, and thereafter the auction proceedings can be initiated. And if the auction proceedings have been initiated and it has been successful, that we have succeeded in auction proceedings, so thereafter we will proceed the matter with the sub-registrar, and within 7 days the financial institution will execute the sale deed in favor of the auction purchaser. So the section 8 is empowering the financial institution that if the auction proceedings have been successful, then the property documents, the transfer of the property can be made through register sale deed, and the financial institution can authorize any of its officer to execute the sale deed before the sub-registrar. For provided that no such sale deed shall be executed or registered until the expiry of 7 days after the completion of the public auction for the sale of the mortgage प्रॉपर्टी जब आप सेल कर देंगे ऑक्शन के अंदर, जब आप कामयाब हो जाते हैं ऑक्शन करने में, तो तमाम प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए जो सेक्शन 15 में दिए गए हैं, जो सेक्शन 15 में जो बुनियादी चीजें जो दी गई हैं जो हमें याद रखनी है, वो 4 नोटिस हैं। पहले 3 नोटिस एक साथ हैं, जिसमें पहला नोटिस 14 दिन का है, दूसरा नोटिस उसके बाद फिर 14 दिन का है, तीसरा नोटिस उसके बाद 1 माह का है, जो हम नोटिस इशू करेंगे मॉर्गेजर को। और उसके अंदर जो खास चीज का जो ख्याल रखा जाएगा वो उसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट और मार्कअप टिल टू डेट, जिस दिन तक आप वो नोटिस भेजेंगे उस दिन तक का उसमें मार्कअप ऐड करेंगे। तीनों नोटिस के फेल होने के बाद, यानी कि नोटिस सर्व हो जाते हैं लेकिन मॉर्गेजर पेमेंट जमा नहीं कराता है, तो उसके बाद हमारे पास जो प्रोसीजर है वो है कि हम एक और नोटिस उसको देंगे, और वो 1 माह का नोटिस होगा। उस नोटिस के अंदर भी
जो हमने सेक्शन 7 में पढ़ा है, पूरी डिटेल्स दी गई हैं कि वो नोटिस आप किस तरह का बनाएंगे, जिसके अंदर आप उस प्रॉपर्टी के पर्टिकुलर्स देंगे, जिसके अंदर आप उसकी तमाम आउटस्टैंडिंग देंगे, जिसमें उसके तमाम एड्रेसेस देंगे। ये तमाम चीजें आप उस नोटिस में लिखेंगे। जो नोटिस आपका पब्लिकेशन होगा 2 बड़े अखबारात में, एक इंग्लिश का और एक उर्दू का न्यूज़पेपर होगा। उसके बाद आप ऑप्शन प्रोसीडिंग्स में जाएंगे। ऑप्शन प्रोसीडिंग्स के लिए जगह का तयन या तो आप अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी किसी बैंक की ब्रांच पर रखें, या सबसे बेहतर तो ये है कि जो प्रॉपर्टी जिस इलाके में सेल हो रही है उस इलाके में ये हम ऑप्शन प्रोसीडिंग्स रखें, ताकि लोग वहां ज्यादा से ज्यादा आ सकें और वो हमारा ऑप्शन सक्सेसफुल हो जाए। जब आपका ऑप्शन सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसके बाद हम 15 के 8 के अंदर रजिस्ट्रेशन की तरफ जाएंगे विद इन 7 डेज। मतलब जब 7 दिन एक्सपायर हो जाएंगे, आप ऑप्शन किए हुए 7 दिन एक्सपायर हो जाते हैं, तो उसके बाद आप जो है वो कंप्लीशन की तरफ जाएंगे। और ऑप्शन क्योंकि आपका कंप्लीट हो गया है, तो जिसने भी वो प्रॉपर्टी खरीदी है ऑप्शन परचेजर ने, तो जाहिर है उसके फेवर में हम सेल डीड एग्जीक्यूट करेंगे। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने किसी भी ऑथराइज अथॉरिटी को ये इख्तियार देता है या दे सकता है कि वो जाए और कंसर्न सब रजिस्ट्रार के पास सेल डीड एग्जीक्यूट करे ऑप्शन परचेजर के हवाले से। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेक्शन 15 के सबसेक्शन 9 की तरफ। और 15 का सबसेक्शन 9 कहता है, अपॉन एग्जीक्यूशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेल डीड ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ द परचेजर, all rights in such property shall vest in the purchaser free from all encumbrances, and the mortgagor shall divest it of any right, title, interest in the mortgage property. जैसे ही हम सेल डीड एग्जीक्यूट कर देते हैं, जब हम सेल डीड सब रजिस्ट्रार ऑफिस में एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो तमाम राइट्स, तो मालकाना हुकूक जिसे हम कहें, वो तमाम मालकाना हुकूक उस शख्स के पास आ जाते हैं जो कि वो ऑप्शन में परचेज कर रहा है। उसके बाद जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उस पे से तमाम लियंस वगैरह हट जाएंगे, और जो उसने मॉर्गेज की थी यानी जो उसका प्रीवियस ओनर था उसके तमाम इख्तियारात, मालकाना इख्तियारात खत्म हो जाएंगे क्योंकि सेल डीड एग्जीक्यूट हो गई है। मूविंग टुवर्ड्स सेक्शन 1510। 1510 में कहते हैं, नेट सेल प्रोसीड ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेल or expenses incurred in any attempt sale shall be distributed ratably amongst all mortgagors in accordance with their respective rights and priorities in the mortgage property. Any surplus left after paying in full all the dues of mortgage shall be paid to the mortgagor. जो आप सेल प्रोसीड्स ऑप्शन के बाद जो आपके पास आएगी वो हम रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। हर केस में रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। जहां पर सेकंड चार्ज क्रिएट किया हो कि किसी शख्स ने एक प्रॉपर्टी एक बैंक के पास गिरवी रखाई हो, फिर दूसरे बैंक से भी उसने लोन लिया हो और उसमें भी वो सेम प्रॉपर्टी रखाई हो विद द परमिशन ऑफ द फर्स्ट बैंक। जो पहला बैंक है जिसका फर्स्ट चार्ज है, अगर वो परमिशन देता है कि भाई ठीक है आप इसको मॉर्गेज कर सकते हैं, तो उस सूरत में वो सेकंड चार्ज क्रिएट कर सकता है, जिसे बैंकिंग की टर्म में हम पाई पासू चार्ज कहते हैं। पाई पासू चार्ज क्रिएट हो सकता है। अब जब दो बैंकों के पास वो चीज मॉर्गेज होगी, तो अगर पहले बैंक ने उसको ऑप्शन की है या दूसरे बैंक ने भी, अगर हम ये कहेंगे दूसरा बैंक जो था सेकंड जिसके पास चार्ज था उसने ऑप्शन कर दी है वो प्रॉपर्टी, तो पहले वो अमाउंट जो है फर्स्ट चार्ज जिसके पास होगा वो अमाउंट उसके पास जाएगा, फिर जो बच जाएगा अमाउंट वो सेकंड चार्ज वाले के पास जाएगा। और अगर उसमें भी बच जाए पैसे, अगर पैसे बच जाते हैं तो फिर वो सरप्लस हो जाएंगे, और वो सरप्लस जो है वो हम पैसे मॉर्गेजर को, बोरोवर को, गारंटर को, जो लोनी था हमारे पास, हम उसको वापस कर देंगे सेक्शन 1510 के तहत। सेक्शन 15 का 11 है, अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हिच has sold mortgage property in exercise of the power confirmed herein shall file proper account of sale proceed in the banking code within 14 days of the sale. अब यहाँ पर सेक्शन 15 का 11 जो है वो तमाम जो प्रोसीजर जो आउटसाइड कोर्ट हुआ था विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, जो कि तमाम मामला सेक्शन 15 के 2 से लेकर और 15 के 10 तक हुए थे,
अब वो तमाम मामला सेल डीड एग्जीक्यूट हो गई, तमाम चीजें कंफर्म हो गई हैं, तो विद इन 14 डेज ये तमाम चीजें बैंकिंग कोर्ट में दाखिल की जाएंगी ताकि उसको एक लीगल कवर दिया जाए। वैसे तो लीगल कवर उसको इस सेक्शन के जरिए मिला हुआ है, लेकिन एक 1511 की एक एप्लीकेशन दाखिल होगी जिसके तहत बैंकिंग कोर्ट से इस तमाम प्रोसीडिंग्स की कंफर्मेशन ली जाएगी। तो एक बाकायदा एक दरखास्त, उसके अंदर तमाम जो भी कार्रवाई आपने की है, जो आपने नोटिस दिए हैं, जो आपने अखबारात में नोटिस दिए हैं, जो आपने सेल डीड एग्जीक्यूट किए, ये तमाम चीजें आप लगाकर एक फाइल, एक एप्लीकेशन आप बनाएंगे 1511 की, और वो 1511 की एप्लीकेशन आप बैंकिंग कोर्ट में दाखिल करेंगे। अब अगर उस पर कोई डिस्प्यूट आ जाता है, कोई किसी को एतराज है, कोई प्रॉपर्ली जो है वो चीज ऑक्शन नहीं हुई है या अंडर वैल्यू ऑक्शन हो गई है या जो भी कोई मामला हैं, तो उस सूरत में फिर एतराज करने वाला कोई, या तो मॉर्गेजर भी एतराज कर सकता है या कोई और शख्स जो कि एग्रीव्ड है उससे, वो भी एतराज कर सकता है इस पे। फिर वो एक एप्लीकेशन देगा बैंकिंग कोर्ट में 15 रूल 12 की। 15 रूल 12 क्या कहता है? ऑल डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द सेल ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी अंडर दिस सेक्शन include dispute amongst mortgagors in respect of the note, conduct or method of sale or the distribution of sale shall be decided by the banking court to the exclusive of any other court of law including high court. ये डिस्प्यूट जो है उसकी जुरिडिक्शन बैंकिंग कोर्ट तक महदूद रखी गई है कि अगर इस तरह का कोई डिस्प्यूट अराइज होता है मॉर्गेजर के हवाले से या कोई और शख्स उसमें जो कि एग्रीव पार्टी है, तो वो एक एप्लीकेशन दाखिल कर सकता है सेक्शन 15 के 12 के अंदर, और उस 15 के 12 के अंदर जो भी उसका डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करेगी बैंकिंग कोर्ट। बैंकिंग कोर्ट के पास ये एक्सक्लूसिव इख्तियार है, और बैंकिंग कोर्ट में फिर पूरा एक प्रोसीजर मौजूद है। जब हम 12 की एप्लीकेशन देंगे तो उस पे मतलब ये हम जो देगा एप्लीकेशन, ये मॉर्गेजर भी दे सकता है और एग्रीव पर्सन भी दे सकता है। फिर उसके बाद इस पे नोटिस, और इसमें फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इसमें जवाब भी जमा करा सकता है, और बाकायदा फिर वो हियरिंग और वो तमाम कंप्लीट प्रोसीजर के तहत वो तमाम चीजें फिर बैंकिंग कोर्ट उसको डिसाइड करेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 12 के बाद सेक्शन 13। सेक्शन 13 भी जो है वो डिस्प्यूट्स के हवाले से है, क्योंकि अब हम इसको अगर हम सेक्शन 15 को लें तो हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हिस्से में डेफिनेशन है, दूसरे हिस्से में विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट प्रोसीजर है, और फिर जो उसका तीसरा हिस्सा है जो अभी हम इसको गो थ्रू कर रहे हैं, जो कि सेक्शन 12 से शुरू होता है, ये रिलेटिंग टू डिस्प्यूट्स है कि कोई अगर डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं तो जो मॉर्गेजर या एग्रीव पार्टी है वो सेक्शन 12 में एप्लीकेशन देगा। फिर उसके बाद जब सेक्शन 12 में एप्लीकेशन आएगी तो उसके बाद सेक्शन 13 में उसका प्रोसीजर बताया गया है कि बैंकिंग कोर्ट क्या क्या चीजें कर सकती है। तो पहले हम उसको पढ़ लेते हैं। 15 का 13 कहता है द बैंकिंग कोर्ट में ग्रांट एन इंजेक्शन restraining the sale or proposed sale of the mortgage property if it satisfies that no mortgage in respect of immovable property has been created. बैंकिंग कोर्ट जो है वो इंजेक्शन ग्रांट कर सकती है अगर ये चीज सेटिस्फाई कर दी जाए कि वो जो प्रॉपर्टी जो ऑक्शन हुई थी वो मॉर्गेज ही नहीं थी। अब जब हम मॉर्गेज के लिए जाते हैं, अमूमन जो प्रैक्टिस है उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स हम लगाते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे भी सूरत-ए-हाल होती है कि फॉर वांट ऑफ सब डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्रार साहब हैं वो उसको पेंडिंग कर देते हैं, और बैंक जो है वो उसकी जो ऑब्जेक्शंस हैं वो रिमूव नहीं करते या भूल जाते हैं, कोई भी मामला हो। तो उस सूरत में वो जब मॉर्गेज अभी कंप्लीट नहीं हुई है, मॉर्गेज अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, सिंपल फाइल करना रजिस्ट्रेशन का, नंबर नहीं मिलना, नंबर जब तक ना मिले, जब तक वो डिजिटल उसकी स्कैनिंग ना हो जाए, जब तक आपका वो डॉक्यूमेंट लीगली वैलिड नहीं है। सिंपल यू हैव, जब सिर्फ हम उसको ये तस्वीर कर सकते हैं कि आपने सिर्फ मॉर्गेज डीड सब रजिस्ट्रार ऑफिस में दी है
और उसकी बुनियाद पे आपने लोन क्रिएट कर दिया, लोन दे दिया पार्टी को। जब हम ऑक्शन के लिए जाते हैं और इस पे ये एतराज आ सकता है कि जी ये तो प्रॉपर्टी ही मॉर्गेज नहीं थी, आपने इसको कैसे ऑक्शन कर दिया। क्योंकि ये मामला कोर्ट से बाहर का था, जो ऑक्शन की जो प्रोसीडिंग्स थी वो कोर्ट से बाहर थी। अगर जब हम कोर्ट में अगर कोई एग्जीक्यूशन फाइल करते हैं तो ये आप लोगों के लिए है, तो उसमें पूरी इंक्वायरी होती है। तो जब हम अटैचमेंट की एप्लीकेशन देते हैं कोर्ट के अंदर, जो सेक्शन 16 में, जो इंशाल्लाह हम आएंगे इस वीडियो में देखेंगे सेक्शन 16 को, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट या अटैचमेंट आफ्टर जजमेंट एंड डिक्री। तो दोनों सूरतों में अटैचमेंट जब होती है तो मुख्तियारकार ऑफिस में एक बाकायदा कोर्ट से एक लेटर जाता है और उस लेटर की बुनियाद पे वो वेरीफाई करते हैं उसको कि वाकई प्रॉपर्टी मॉर्गेज है नहीं है, इस पे लियन मार्क है या नहीं है, फिर जाकर वो उसको अटैच करते हैं। अगर नहीं होते तो फिर वो मुख्तियारकार साहब जो बैंकिंग कोर्ट से जो लेटर गया होता है उसके जवाब की सूरत में जो भी वहां पर वजाहत करनी हो वो करते हैं। तो ये कोर्ट की प्रोसीडिंग है। लेकिन चूंकि अभी हम सेक्शन 15 में है, तो सेक्शन 15 जो है वो विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट है, इसलिए वहां पर ये इस चीजों को नहीं देखा जाता और इस पे एतराज आ सकता है, जो कि आप 15-13 के अंदर एतराज दाखिल करके इस पे स्टे ले सकते हैं। बी है इसका, it is satisfied that there is fraud in the proposed mode, conduct or method of the sale, provided that no injunction shall be granted on the ground of fraud unless upon the fact proved the banking court is satisfied that the applicant has sustained substantial injury by reason of such fraud and such injury cannot be compensated by the damages or। तो वही कोर्ट के में अगर कोई ऐसी चीज हो जो कि आप उसको साबित कर सकें, फ्रॉड साबित कर सकें, तो उस सूरत में या जो आपको डैमेज हुआ है वो कंपनसेट करने जैसा नहीं है। क्योंकि जाहिर है कि किसी शख्स का अगर आप घर बेच दें और वो आपने गलत तौर पे उसको बेच दिया, गलत प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करके भेज दिया, तो उसकी तो सारी जिंदगी जमा पूंजी चली गई। तो उस सूरत में इसमें इंजेक्शन मिल सकता है। उसके बाद हम आते हैं सी के ऊपर, ऑल मनी सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी हैव बीन पेड or the mortgager or objector deposit in the banking court in cash the outstanding mortgage money। जब आप ये ऐसी कोई दरखास्त दाखिल करते हैं जिसमें आप कोई डिस्प्यूट अराइज करते हैं रिगार्डिंग टू द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, रिगार्डिंग टू द ऑक्शन प्रोसीडिंग्स, सेक्शन 15 का 12 में या 15 के 13 के अंदर, तो उस सूरत में कोर्ट जो है वो आपसे ये कह सकती है कि जो मॉर्गेज को अमाउंट था, जो अमाउंट डिक्रीटल अमाउंट है वो आप जमा कराएं बैंकिंग कोर्ट में, फिर आपकी दरखास्त सुनी जाएगी। तो बहुत सारे उसमें कंडीशंस हैं, जिसमें से एक कंडीशन ये भी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 15 का 14 पर 15 का 14 कहता है where any mortgage property has been sold, the mortgager or any person entitled to share in the ratable distribution of asset or whose interest is affected by the sale may apply to the banking court to set aside the sale on the ground of fraud, provided that no sale shall be set aside on the ground of fraud unless the facts prove the banking court is satisfied that the applicant has sustained substantial injury by reason of such fraud and such injury cannot be compensated or the damages। ये सारी चीजें हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई फ्रॉड कमिट हुआ है, कोई ऐसी चीज है जो कि बैंकिंग कोर्ट की नॉलेज में जब आप लेकर आते हैं ऑब्जेक्शंस की सूरत में, तो बैंकिंग कोर्ट जो है जाहिर है कि अदालत है और अदालत जो है वो मेरिट पे डिसाइड करती हैं मामला को। क्योंकि सेक्शन 15 इससे पहले जब बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस में आया था तो इसको स्ट्राइक ऑफ किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने।
कि ये इट अमाउंट टू बी अ पैरेलल कोर्ट, के एक साइड पे जज फैसला कर रहा है, दूसरी साइड पे बैंकर फैसला कर रहा है। लेकिन उसके बाद फिर ये एक्ट के अंदर 2016 में इसको दोबारा लेकर आए हैं और उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस की गई हैं जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 15 के 15 पे। ये क्या कहता है? ये कहता है एन एप्लीकेशन फॉर सेट असाइड द सेल अंडर सबसेक्शन 14 मस्ट बी मेड विदिन 7 days of the completion of public auction for the sale of mortgage property and shall not be entertained by the banking court unless applicant deposit an amount equal to 25% of the reserve price of furnished surety of the same amount to the satisfaction of the banking court. इससे ऊपर वाले सेक्शन में सेक्शन 15 के 14 में ये डिफाइन नहीं किया था कि कितना अमाउंट जमा कराना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर वो चीज को और क्लियर कर दिया गया है कि उसका जो भी अमाउंट है उसका 25% जो रिजर्व प्राइस है वो आपको जमा कराने पड़ेंगे फर्निशिंग श्योरिटी ऑफ दैट अमाउंट टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। और आप जो एतराजात हैं आपके वो आपने जो दाखिल करने हैं वो ऑक्शन के 7 दिन के अंदर अंदर दाखिल करने हैं और उन दाखिल करने के साथ आपकी वो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होंगी। और अगर कोर्ट ये समझती है कि ये जो आपने चीजें इनिशिएट की हैं तो वो इस सेल को सेट असाइड भी कर सकती है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 15 के 16 की तरफ, और 15 का जो 16 है वो भी तकरीबन इसी हवाले से है कि the rights and remedy provided under this section are in addition to and not in lieu of any other right or remedy financial institution may have under this ordinance। जो भी राइट्स और रेमेडीज हैं, जैसे कि मैंने कहा कि हम सेक्शन 15 को 3 पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। पहले पोर्शन में जो विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट की बात है, उसके बाद सेकंड पोर्शन के अंदर जो है जो रेमेडीज आपके पास अवेलेबल हैं कि आप अगर उस पर कोई एतराज दाखिल करना चाहते हैं तो सेल जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको आप खत्म कराना चाहते हैं, वो तमाम इसमें प्रोसीजर्स दिए गए हैं जो कि मॉर्गेजर के हवाले से हैं। ये 2 पार्ट्स में तो है ही कि पहले पार्ट में आप जो कर रहे हैं प्रोसीडिंग्स, वो तमाम प्रोसीडिंग्स वो हैं जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर रहा है खुद अपने तौर पे विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। उसके बाद जब वो कोर्ट में आ जाता है तो वो सेकंड पार्ट है उसका, जिसमें वो तमाम प्रोसीडिंग्स लाकर कोर्ट में दाखिल कर देता है, तो वो उसका हो गया सेकंड पार्ट। उसके बाद थर्ड पार्ट उसका जो है इस सेक्शन का वो ये है कि इसके अंदर रेमेडीज दी गई हैं कि वो रेमेडीज जो कि मॉर्गेजर के हवाले से हैं कि मॉर्गेजर को भी कुछ ऐसी रेमेडीज दी गई हैं कि वो इन सेल प्रोसीडिंग्स को जो है उसको सेटिस्फाइड करा सके। अगर कोई फ्रॉड वगैरह कमिट हुआ है उसके अंदर वो 25% ऑफ द रिजर्व प्राइस है वो जमा कराएगा और कोर्ट को सेटिस्फाई करेगा कि आया ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज थी या नहीं थी। तो ये इस तरह से हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं कि पहले हिस्से में विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, दूसरे हिस्से में कोर्ट में प्रोसीड्स जमा कराई गई, तीसरे हिस्से में फिर ऑब्जेक्शन आ जाती हैं जो कि कोर्ट फिर मेरिट पे डिसाइड करेगी। और उसके बाद इसका कंक्लूडिंग जो है 17 जो है वो रेक्टिफिकेशन है। जो जैसे मैंने अभी इससे पहले कहा आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक ऑफ कर दिया था इस सेक्शन को, तो उसकी इन्होंने जस्टिफिकेशन इसके अंदर 17 में दी है, हम उसको पढ़ भी लेते हैं। The provision contained in this section shall have effect notwithstanding anything contained in this ordinance or any other law for the time being in force or any judgment of any court, or in case of any conflict between the provision contained in this section and any other law for the time being in force or any judgment of any court, the provision contained in this section shall prevail। तो तमाम चीजों को इन्होंने इस सेक्शन में लाके सब सेक्शन में लाके रेक्टिफाई कर दिया गया है कि जो भी कोर्ट के अंदर जो जजमेंट्स और केसेस वगैरह जो डिसाइड हुए जो हुए उसके बावजूद ये जो सेक्शन है 15 ये प्रिवेल करेगा। तो आज हमने इसको सेक्शन 15 को थॉरली इसको स्टडी किया है। मुझे उम्मीद है कि आप को कुछ मालूमात आप तक पहुंचाने में कामयाब हुआ होगा। अगर जो भी कोई आपके सवालात हों
तो आप वो सवालात अपने इस कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके जवाब दे सकूं। दूसरी ये कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है, और आप ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑर्डिनेंस पे, उसकी लिंक्स इस डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, और वो तमाम जो लिंक्स हैं वो मैंने शेयर किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम सेक्शन 16 पे बनाएंगे जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑर्डिनेंस का है, और वो अटैचमेंट के हवाले से, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। मैं आखिर में फिर आप सब लोगों का मशकूर हूँ जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, और आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त तक तकरीबन 240 सब्सक्राइबर हो गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, प्रमोट करते रहेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में हम जो अभी बना रहे हैं सिर्फ बैंकिंग लॉ के हवाले से, उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट इंशाल्लाह सीपीसी और फैमिली लॉ, रेंट लॉ, ये तमाम चीजें इसमें शामिल हैं। वो कंटिन्यूटी में आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। उसके अलावा भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो कोई भी टॉपिक हो लॉ से रिलेटेड, तो उस पर इंशाल्लाह कोशिश की जा सकती है कि आप लोगों को मालूमात फराहम की जाए। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन है कि हम आप एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं ताकि ये जो चीजें हैं ये मेमोराइज कर सकें। जैसे कि आज की जो हमारी कंक्लूजन है इस वीडियो की, जो मेमोराइजेशन है वो 3 पार्ट्स के अंदर है। कि जो आपका पहला पार्ट है वो है जो कि विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट है। जो सेकंड पार्ट है उसमें आपने जो प्रोसीड्स जो आपने ऑप्शन कर चुके हैं वो पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स आप कोर्ट में जमा कराएंगे सेक्शन 15 के 11 के अंदर। उसके बाद 12 से लेकर और 17 तक, 12 से लेकर 16 तक वो तमाम फिर सेक्शंस हैं जिसमें आप एतराज़ात दाखिल कर सकते हैं। एतराज़ात दाखिल करने का प्रोसीजर है रिगार्डिंग टू द मॉर्गेजर। और फिर फाइनली जो कंक्लूडिंग इसमें दिया है 17 में वो जो स्टक ऑफ किया गया था उसको भी रेक्टिफाई किया है इसमें 17 में, और उसके तहत ये कहा गया है कि ये जो सेक्शन है ये प्रिवेल करेगा किसी भी अदालती फैसले के बावजूद। तो आप सब लोगों के टाइम का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ये वीडियो आखिर तक देखी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।